A very good morning to all the students. Myself Ashish Kumar Singh, and the subject which I am dealing with is law of torts. So this law of tort is relevant for the students of LLB 3 year per semester students. So before starting the law of torts, let us discuss the syllabus of law of torts. Okay. So now I'm going to share the syllabus. As you can see here, the syllabus of law of torts for the students of LLB 3 year first semester students. Unit 1. Syllabus for the Unit 1 is Introduction and Principle on Tort, Nature and Definition of Tort, Development of Tort, Tort distinguished from contract, crime, and breach of trust, cyber trust. Fine. So the most relevant question which is going to come in your exam, as I have written it down in this format, you can see it here. Long question which is most expected to come is question number 1. As you can see, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. This duty is towards general this duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for an unliquidated damages. Examine the statement. So this question is actually a statement which has been given by the Winfield, and you have to explain it. Okay, fine. So I'm dealing with this question later on. The second question is explain the definition of Salmon and Winfield along with pigeonhole theory, why the law of torts could not develop in India. And the third question, which is relevant, is how tort is different from crime and breach of contract explained. So let us discuss the question number 1. Fine. So here is the answer, as you can see over here. So before starting the answer of the question number 1, I want to tell you the relevant book which you are going to refer is Dr. R.K. Bangia. This particular book is in both Hindi and English language. You can purchase it from the market. It is very good book and you can refer it from there. Fine. So as you can see the answer of question number 1, the following ingredients should be mentioned, should be there in your answer. When you are going to then write your answer in the exam, the following matter should be there. As I have written over here, this answer shall include the following points. Number 1, tort derived from Latin word tortum, which means twist. Second thing which you are going to mention in your answer is, it is the definition of Winfield. So according to Winfield, tortious liability arises from a breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for an unliquidated damages. And number 3, following condition responsible in tort: A, duty two types: duty primarily fixed by law and duty towards persons. Second, breach, and third one, remedy in the form of unliquidated damages. Okay, now let us continue this answer. Okay, so before starting the answer, I want to tell you something, that see, law of tort is a civil wrong. It is not a criminal wrong. So whenever there is a civil wrong, you are going to take the law of torts. Okay, so it is a civil wrong, not a criminal wrong. So the whatever the punishment is awarded over here is not in the form of your means you are going not going judges are not going to put you behind the bar, but they are just simply award just simply say you to pay the fine for that. Fine in the here is means unliquidated damages. They are going to award the unliquidated damages in the form of money. Here they are not going to punish you, or they are not going to convict you for going into the jail for certain period, but certainly they are going to just uh, tell you that just go and give some money in the form of unliquidated damages which you are going to give to the victim. Okay, so let us start the answer. The law of tort put a control on the behavior of the people in the society. So the main function of law of tort is to control the behavior of the society. जो मेन पर्पस जो है टॉट का क्या है,
कि इस सोसाइटी में सभी प्रकार के लोग रह रहे हैं और सभी प्रकार के लोगों पे एक क्या है, एक दी गई है कि अपने बिहेवियर पे आप कंट्रोल करके रहिए। सभी के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है, लॉ ने ड्यूटी इम्पोज की है कि सोसाइटी में जो भी रहेगा एक नियम के अकॉर्डिंग रहेगा, इस नियम के उसके ऊपर प्रतिबद्ध रहेगा, उस नियम से प्रतिबद्ध रहेगा कि उस नियम को उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं आगे रीडिंग करने से पहले कुछ बातें और बोलना चाहता हूँ। जैसे जब सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो सोसाइटी में हर किसी के ऊपर कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं, सर्टेन ड्यूटीज होती हैं। जैसा आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, राइट्स भी हमें दिए गए हैं, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी दे रखी है। तो हमारे पास राइट्स और ड्यूटीज दोनों हैं। तो अगर राइट्स मिले हैं तो ड्यूटीज भी इम्पोज है। ड्यूटीज हमारी क्या, तो यहाँ पर कहा जा रहा है टॉर्च में जो ड्यूटीज जो लॉ ने हमारे ऊपर इम्पोज करी है, ठीक है, उस ड्यूटी जो इम्पोज की है उसको हम ब्रीच नहीं करेंगे। ड्यूटी हमारी क्या है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोग का मान सम्मान करूं, आपसे कायदे से बात करूं, आपकी प्रॉपर्टी जहां पर भी है उसमें ट्रेसपास ना करूं, ठीक है, किसी प्रकार का वॉयलेशन, किसी प्रकार का जो ड्यूटी मेरे ऊपर इम्पोज की गई है लॉ के द्वारा उसको मैं ब्रीच ना करूं। और यदि मैं उस ड्यूटी को ब्रीच करता हूं तो क्या होगा, लॉ क्या करेगी, लॉ मुझे पनिश करेगी, लॉ मुझे क्या करेगी, फाइन इम्पोज करेगी मेरे ऊपर। तो यही अनलिक्विड यहीं पर जो है काम आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाता है। कैसे, अब देखिए आगे, इट मेक्स पीपल लायबल फॉर देयर रॉन्ग बिहेवियर। तो अगर आप गलत बिहेवियर करेंगे समाज में रह करके, जो इम्पोज क्या किया गया है आपके ऊपर ड्यूटी कि आप कायदे से रहेंगे, अगर आपने गलत तरीके से गलत व्यवहार किया तो क्या करेगा, ये लायबल करेगा, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको लायबल करेगा आपके रॉन्गफुल बिहेवियर के लिए। क्लियर, आगे, द वर्ड टॉट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम। तो ये वर्ड कहां से आया है, टॉट, ये एक लैटिन वर्ड है टॉटम, वहां से आया गया है। टॉटम का मतलब होता है ट्विस्ट। ट्विस्ट, कोई चीज निचोड़ देना, तोड़ मरोड़ के पेश करना, सीधा ना होना किसी चीज का, ठीक है। मतलब इसका क्या, अगर इसको लॉ लॉ के टर्म्स में समझे तो समथिंग विच इज नॉट लॉफुल, समथिंग विच इज नॉट लॉफुल मीन्स अनलॉफुल। अगर कोई हमारा एक्ट अनलॉफुल है उसे हम कह सकते हैं टॉट। आगे पढ़िए, देखिए इसमें क्या दे रखा है। The word tort has been derived from the Latin word tortum, which means to twist. It therefore includes that conduct which is not straight or lawful. जो चीज लॉफुल ना हो, जो स्ट्रेट ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, टॉटम कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, हैंड ट्विस्टेड, क्रूक्ड और अनलॉफुल, जो अनलॉफुल हो, ट्विस्टेड हो, क्रूक्ड हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टॉटम, या फिर उसे कह लीजिए आप इक्वल टू दी वर्ड रॉन्ग। इंग्लिश वर्ड जो है रॉन्ग का अगर मतलब कहें तो टॉटम इज इक्वल टू रॉन्ग। अगर देखा जाए तो देखिए मैं बताता हूँ, टॉट मतलब टॉटम, टॉट कहां से आया, टॉटम, टॉट इज इक्वल टू टॉटम और टॉटम इज इक्वल टू रॉन्ग। तो क्या हुआ, टॉट को तो सीधे सीधे समझना हो तो टॉट मतलब होता है किसी ने अगर कोई रॉन्ग कमिट किया है तो वहां पर आपका लॉ ऑफ टॉट्स आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, अब आगे बढ़ते हैं। Before a definition of tort is analyzed, it is claimed by many writers that an accurate definition of tort is very difficult to give because of the following reasons. अच्छा, ये जो हम अभी क्वेश्चन डील कर रहे हैं ये एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक डिफिनीशन है जिसको विंसफील्ड साहब ने दी है। इसी विंसफील्ड साहब की डिफिनीशन को हमको एक्सप्लेन करना है। पर इस डिफिनीशन, ऐसी डिफिनीशन और भी लोगों ने दी है, डिफिनीशन जो है टॉट की बहुत से लोगों ने अपने अपने नजरिए से दी है। पर इस डिफिनीशन के आने से पहले क्या था, इस डिफिनीशन के आने पे लोग मानते थे, ये चीज मानते थे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डिफिनीशन देना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और वो कुछ कारणों बस कहते थे, वो कौन से कारण है वो सुन लीजिए आप लोग, मैं इसमें मेंशन कर रखे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट में, उसको सुनिए। जैसे इससे पहला पॉइंट दे रखा है, द लॉ ऑफ टॉर्ट इज बेस्ड ऑन द डिसाइडेड केसेस, जजेस while deciding a case feel their primary responsibility to adjust the care rather than to lay down any legal definition of term। तो क्या दे रखा है कि द लॉ ऑफ टॉर्ट इज बेस्ड ऑन द डिसाइडेड केसेस। जो लॉ ऑफ टॉर्ट जो था वो किस पे डिपेंड होता था, ये जो जजेस जो केसेस डिसाइड करते थे ये वहीं से निकल के आया है लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है। जजेस क्या करते थे, जजेस while deciding a case feel their primary responsibility to adjust the care rather than to lay down any legal definition of term। तो जजेस का काम होता था कि भैया क्या रॉन्ग हुआ है उसको डिटरमाइन करके उसकी पेनल्टी इंपोज करें, ना कि उस चीज को डिफाइन करें। डिफाइन नहीं किया गया लॉ, कभी भी जजेस ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है ये डिफाइन नहीं किया। जजेस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर जज सामने जब कोई सूट आता था तो उसको डिसाइड करते थे क्या ग्रीवेंस हुआ है, क्या चीज रॉन्ग कमिट हुआ है, उस रॉन्ग को किसने कमिट किया है उसको सजा देना, ये काम करते थे, ना कि उन्होंने ये कभी किया कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को डिफाइन किया। इसलिए इसको मुश्किल माना था, जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स आया कहां से, जो डिसाइडेड केसेस थे जजेस के द्वारा, वहीं से लॉ ऑफ टॉर्ट्स इजाद हुआ था। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंग्लैंड ग्रीव फ्रॉम ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो ग्रीव हुआ है
वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा ग्रीव हुआ है। इंग्लैंड में जो लॉ चलता था वहीं से निकल के आया, तो बड़ी ही जटिल प्रक्रिया से लॉ ऑफ टॉर्ट्स निकल के आया। द रेमेडी फॉर एन इलीगल इंजरी वाज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिट्स। अब वहां पे जो रॉन्ग्स होते थे, जो इंजरी होती थी, वो मेनली जो है उसका जो डिसीजन होता था वो कैसे होता था, रिट्स के द्वारा होता था। ठीक है, वहां पे कोई पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं थी टॉर्ट्स की, टॉर्ट की कोई पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं थी, और रिट्स के द्वारा क्या होते थे, सजाएं जो 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 भी अपराध आते थे सामने, उनको जो डिसीजन होता था वो रिट्स के द्वारा होता था, जो फाइल होते थे अपराध वो रिट्स के द्वारा होता था, और रिट्स के द्वारा ही क्या होता था, रिट्स के द्वारा ही इनको रेमेडी प्रोवाइड कर दी थी। द रेमेडी फॉर एन इलीगल इंजरी वाज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिट्स। तो जो रेमेडी मिलती थी वो किस फॉर्म में होती थी, रिट्स के फॉर्म में मिलती थी उन लोगों को। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, इसलिए इसलिए ये मुश्किल हुआ, वहां पे कोई टर्म था ही नहीं जिससे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स को लेकर के उसको अप्लाई करते। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये आई, द लॉ ऑफ टॉर्ट इज स्टिल ग्रोइंग, इफ अ थिंग इज ग्रोइंग नो सैटिस्फैक्टरी डिफिनीशन कैन बी गिवन। तो ये तीसरी बात इसलिए मुश्किल माना गया लॉ ऑफ इसकी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डिफिनीशन देने के लिए, कि लॉ ऑफ टॉर्ट अभी भी डेवलप कर रहा है, ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। जब एग्जॉस्टिव नहीं है तो डेली उसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो इस वजह से भी इसकी डिफिनीशन देना बड़ा ही कठिन माना गया। आगे समझते हैं इस चीज को। The definition of tort has been attempted by several writers. बहुत से राइटर्स ने इसकी डिफिनेशन देने की कोशिश करेगी। ठीक है, और ये जो अबव डिफिनेशन जो हम लोग जो डिफिनेशन को हम लोग एलोबरेट करने के लिए जो हमको दिया गया है क्वेश्चन, वो किसने दी है, विनफील्ड साहब ने दी है। देखिए इसमें लिख रखा है, the above definition of law of tort has been given by Professor Winfield के द्वारा। According to him, इनके अकॉर्डिंग क्या था, tortious liability arise from the breach of a duty। कहा गया कि टॉर्शियस लाइबिलिटी जो है वो कहां से राइज होती है, अगर आपको ऊपर कोई लॉ ने ड्यूटी इंपोज की है और उस ड्यूटी को आपने क्या किया है, ब्रीच किया है, तो वहां पर क्या होता था, दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इस ब्रीच इज रिट्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। और कहा गया अगर उस ड्यूटी का आपने ब्रीच किया तो वहां पर जो रेमेडी मिलती थी वो किस फॉर्म में होती थी, अनलिक्विडेड डैमेजेस के फॉर्म में उस रेमेडी को दिया जाता था। ठीक है, और ये ड्यूटी किससे, ये ड्यूटी हर एक व्यक्ति पे समान तौर पे लागू होती थी। मेरी ड्यूटी क्या, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपका मान सम्मान से बात करूं, आपकी इज्जत करूं, ठीक है, सोसाइटी में कायदे से रहूं, ठीक है, किसी की जमीन में जबरदस्ती घुसू ना, ट्रेसपास ना करूं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ड्यूटी मुझ पे इम्पोज की गई है। ठीक है, देश के राष्ट्र का क्या कहते हैं, नेशनल एंथम का सम्मान करूं, मतलब कैजुअल ड्यूटी आपके ऊपर क्या, मतलब जितने भी यहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनका सम्मान करूं। ठीक है, ये सब क्या है, उनको डिस्ट्रॉय ना करूं, ये सब क्या है, ये सब ड्यूटी इंपोज की गई है। अगर ये ड्यूटीज क्या करता हूँ, ब्रीच करता हूँ, तो लॉ मुझे क्या करेगी, लॉ मुझे इसके लिए लायबल करेगी और मुझे पनिश करेगी किस फॉर्म में, अनलिमिटेड डैमेजेस के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं इसको। Thus, according to Wilfrid, in order that a person may be held responsible in tort, the following condition must be filled in। तो विल्फ्रीड के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर लायबल करना है तो जो निम्नलिखित जो कंडीशंस दे रखी हैं ये फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि क्या, पहली, देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। जो ड्यूटी आपके ऊपर इंपोज की गई है वो ड्यूटी क्या होनी चाहिए, उसको आपको ब्रीच करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, दिस ड्यूटी शुड बी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। ये ड्यूटी किसके द्वारा फिक्स की गई है, ये ड्यूटी फिक्स की गई है लॉ के द्वारा। फाइन। दूसरी बात। तीसरी बात, दिस ड्यूटी शुड बी टुवर्ड्स पर्सन जनरली, मतलब ये ड्यूटी पर्सन जनरली के प्रति है। ठीक है, हर, जैसे मेरा क्या है ड्यूटी, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं आपके आत्म सम्मान की रक्षा करूं, आपका मान सम्मान करूं, आपके फील्ड में जो आपका घर इसमें ट्रेसपास ना करूं, ये क्या है, आपके प्रति मेरी ड्यूटी बनती है। दिस ड्यूटी शुड बी टुवर्ड्स पर्सन जनरली, सभी लोगों के प्रति मेरी ड्यूटी बनेगी। चौथी बात, remedy for the breach of aforesaid duty should be available in the form of unliquidated damages। और यदि किसी ने ब्रीच किया है तो उसकी रेमेडी किस फॉर्म में होगी, उसकी रेमेडी जो होगी वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में होगी। क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एनालिसिस ऑफ द अबव एलिमेंट देयर आर थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ विनफील्ड डिफिनेशन। तीन पॉइंट्स जो है विनफील्ड डिफिनेशन को सामने आ रही हैं इस पढ़ने के बाद। क्या, कि ड्यूटी होगी, पहला पॉइंट ड्यूटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, लॉ इंपोजेस ड्यूटी ऑन एवरी पर्सन इन द सोसाइटी। तो लॉ जो है वो, जैसे आपको लॉ ने राइट्स दे रखे हैं वैसे ही लॉ ने आपके ऊपर ड्यूटीज भी इंपोज कर रखी हैं, और ये ड्यूटीज समाज के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। आगे पढ़ते हैं। The law also expects that all persons will observe these duties and will not make a breach of them। तो लॉ क्या कहता है, लॉ ये मानता है कि जैसे आपके राइट्स हैं वैसे ही आपकी ड्यूटीज आप पे इंपोज हैं, और आप इस ड्यूटी को निभाएंगे और इन ड्यूटीज को आप ब्रीच नहीं करेंगे। ठीक है, आगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम अंडर एन ड्यूटी नॉट टू असॉल्ट यू। मेरा क्या है, मेरे ऊपर ड्यूटी क्या है, इंपोज की गई है लॉ के द्वारा
कि मैं असॉल्ट नहीं करूंगा आपको, नॉट टू ट्रेसपास ऑन योर लैंड, आपके लैंड पे ट्रेसपास नहीं करूंगा। अगली बात, देयर आर टू स्पेशल फीचर्स ऑन दिस ड्यूटी। दो स्पेशल फीचर्स हैं इस ड्यूटी के, वो क्या क्या हैं? ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। ए, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इट मींस दैट द ड्यूटी शुड बी फिक्स्ड बाय लॉ। ड्यूटी जो है वो फिक्स की गई किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, नॉट बाय द पार्टीज, और पार्टीज के द्वारा ना। दिस ड्यूटी शुड एग्जिस्ट ऑलरेडी, ये ड्यूटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। दिस पार्ट ऑफ डिफिनिशन डिस्टिंग्विश टॉट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्ट जो है टॉट का, ये जो पार्ट है डिफिनिशन का, ये डिस्टिंग्विश करता है टॉट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। इसी टॉट में क्या है? टॉट में ड्यूटी आपके इंपोज की गई है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां हम और आप किसी बात पे एग्री करते हैं, हम लोग आपस में किसी में बैठ के बात करते हैं, उन बात को क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं और उन बात पे एग्री करते हैं। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है तो वहां लॉ नहीं इंपोज कर रहा हमारे ऊपर ड्यूटी, हम लोग एक दूसरे के ऊपर वो ड्यूटीज इंपोज कर रहे हैं। कि जैसे मैंने आपसे कहा मुझे आपसे कोई सामान खरीदना है मतलब 1,000 रुपए में, तो आपने राजी हुए 1,000 रुपए पे, तो ये सब लिखित होगा ना। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन हम आप बैठ के बना रहे हैं, ना कि लॉ हमारे ऊपर इंपोज कर रही है। तो यही चीज हमारा जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अंतर स्पष्ट कर रहा है। दूसरी बात है ड्यूटी टुवर्ड्स पर्संस जनरली। ये ड्यूटी कैसे होगी? प्रत्येक व्यक्ति के प्रति होगी हमारी। दिस ड्यूटी इज जनरल। जनरल मतलब सभी समान रूप से सभी के ऊपर लागू होती है और सभी को एक दूसरे के प्रति ड्यूटी वो निभानी पड़ेगी। और ड्यूटी इज जनरल ऑन एवरी पर्सन एंड लायबिलिटी में अटैच टू एनी पर्सन हु मेक्स अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और ये लायबिलिटी किससे बनेगी? ये वो सारे व्यक्ति बनेगी जो उस ड्यूटी को क्या करेगा? ब्रीच करेगा। इट ऑल्सो it also distinguish tort from breach of contract there the where the duty is cast only on the party of to the contract। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट में हमारे सिर्फ दो पार्टी, जिन पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ वहां पे एक दूसरे के प्रति वो ड्यूटी होती है कि भैया मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? मैं सेकंड पार्टी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट करी सिर्फ उसी के प्रति है। वहां पे क्या होता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में है सिर्फ उन्हीं के प्रति मेरा दायित्व है, ना कि समाज के प्रति मेरा दायित्व है। जबकि टॉट में क्या है? टॉट में मेरा हर प्रति व्यक्ति के, जितने भी समाज में व्यक्ति रह रहे हैं, सबके प्रति मेरा क्या दायित्व बनेगा? कि मैं सबसे समान सम्मान से इज्जत से बात करूं, किसी को छेड़कर बदतमीजी ना करूं, किसी के लैंड में ट्रेसपास ना करूं, ये मेरे ऊपर ड्यूटी इंपोज है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ स्पेसिफिक पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं उन्हीं के प्रति मेरी ड्यूटी इंपोज होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ब्रीच की बात बोली गई, कहा गया ब्रीच होगा। तो ब्रीच मतलब क्या? ब्रीच मींस नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द एपोस्टेड ड्यूटी। जो ड्यूटी हम पे इंपोज की गई है वो ड्यूटी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसी को कहेंगे नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द एपोस्टेड ड्यूटी। ठीक है। लायबिलिटी अंडर टॉर्ट ओनली विल अराइज व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो लायबिलिटी टॉर्ट के अंदर कब अराइज आएगी? जब हम उस ड्यूटी जो हमारे ऊपर सौंपी गई है, जो दी गई है, उस ड्यूटी का हम ब्रीच कर देंगे, तो वहीं पर टॉर्ट के अंदर हम लायबल हो जाएंगे। क्लियर? तीसरी बात, रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेड डैमेजेस। यहाँ पे रेमेडी जो मिलती है अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो अनलिक्विडेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है और लिक्विडेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? तो अनलिक्विडेड डैमेजेस का मतलब होता है बेटा जहां पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि कितना वो पैसा अवॉर्ड करती है, कितना अमाउंट तक वो पैसा देना चाहती है। जहां लिक्विड डैमेजेस मतलब जहां पे फिक्स, पहले से ही अमाउंट फिक्स है। कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में हुआ, हमने अगर ब्रीच किया, हमने जब एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट में हमने लिखा कि अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया तो उसको 10,000 रुपए कंपनसेशन के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो वहां पे फिक्स हो गया 10,000 रुपए। पर यहाँ पर टॉर्ट में फिक्स नहीं होता है। टॉर्ट में क्या होता है? टॉर्ट में फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड होता है केस के, और कितना डैमेज हुआ है उस व्यक्ति को उस पर डिपेंड करता है। कोर्ट फिर वहां पे डिस्क्रिप्शन अप्लाई करती है कि कितना अमाउंट दिया जाए। क्लियर? इन टॉर्ट द डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड मींस नॉट प्रीफिक्स्ड। क्या मतलब होता है? पहले से फिक्स ना हो उसे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। आफ्टर द रॉन्ग हैज बीन कमिटेड जनरली इट इज द मनी कंपनसेशन व्हिच में सेटिस्फाई द इंजर्ड पार्टी। तो जनरली क्या होता है? कोर्ट जो है वो मनी फॉर्म में डैमेजेस देती है। अनलिक्विडेड डैमेजेस किस फॉर्म में? मनी फॉर्म में देगी। वेयर क्वांटम ऑफ डैमेजेस, वेयर क्वांटम ऑफ डैमेजेस, आगे देखते हैं, वेयर क्वांटम ऑफ डैमेजेस डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इट इज टू बी कॉल्ड अनलिक्विड डैमेजेस। जहां पर जो डैमेजेस है वो किसके डिस्क्रिप्शन पे कि कितना डैमेज देना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन जब हो जाता है कोर्ट के पास, तब इसी को कहेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो देयर आर अदर रेमेडीज आल्सो अवेलेबल, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लॉ और टॉट। और भी रेमेडीज हैं, पर ये तीन जो है जो अभी मैंने बताई, ये मेन इंग्रेडिएंट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए। ठीक है। Thus, Winfield definition provided a good working rule.
द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ दिस डिफिनेशन इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी। तो इस डिफिनेशन ने कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है ड्यूटी का वो हमको समझा दिया कि भैया देखिए समाज में जैसे ही आपको अगर राइट्स मिले हैं तो वैसे ही आपके ऊपर ड्यूटी भी इम्पोज की गई है, और उन ड्यूटी के अकॉर्डिंग ही आपको बिहेव करना है। आपको समाज में अगर रहना है तो प्रॉपर बिहेवियर के साथ रहिए, ये ड्यूटी इम्पोज की गई है। किसी के साथ आप बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी के लैंड में आप ट्रेसपास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब जब ड्यूटीज इम्पोज कर दी गई तो कहीं ना कहीं इस डिफिनेशन ने विलफील्ड साहब के हमें एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि ड्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है, जो ड्यूटी है उस ड्यूटी का मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्ट दे दिया। On one hand, it defines the relationship of plaintiff and defendant. On the other hand, a standard of behavior which the defendant is required to fulfill. The definition also explains the nature of remedy. तो इसने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बता दिया और रेमेडी बता दी, और क्या बता दिया कि ये समाज में हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। इनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी इस डिफिनेशन ने हमको समझा दिया कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस किसे कहते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस किसे कहते हैं। और बेटा इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 1 का, वो यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इतने पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे तो आपको एक बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम्स में। आज के लिए बेटा मैं इतनी यहीं पे रोक रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।